Good morning, students. Am I audible? Students, am I audible to you all? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Okay. Okay. So, do you remember what we did in the previous lecture, students? Anyone remember what we did in the second lecture? Yes or no? Okay. We discussed about what we have discussed till now in this topic. The first point was what is semiconductor, and secondly, the types of semiconductor. Okay. Quickly tell me, what are the two examples of pure semiconductor? Students, kindly answer my question. Silicon, Yeah, and germanium. silicon and germanium. Okay. So there are two examples of pure semiconductor. One is silicon and the other one is germanium. Is this clear? Okay. Just a minute. Now, if you remember in semiconductor, okay, if there are two bands, the lower band is known as a valence band, and what the upper band is known as, it is known as a conduction. Conduction. The bottom level of conduction band is denoted by EC, and the top level of valence band is denoted by EV. Okay, and the separation between the two, that is EC minus EV, is denoted by what? Is denoted by EG, something known as a band gap energy. EG is known as what? A band gap energy. So tell me, students, what is the value of EG in germanium? Do you remember? These values can be asked in your board examination as an MCQ. Tell me, what is the value of EG in case of germanium? Anyone remember? It is 0.67 0.67. electron volt. And in case of silicon, the value of Eg is 1.12 electron volt. Okay, these are confusing values. Okay, so keep these values in your mind, that for germanium, band gap energy is 0.67, and for silicon, the band gap energy is 1.12 electron volt. Are you all clear? Yes. Okay. Then we have discussed about the formation of PN junction diode. Okay, and the symbol of diode is somewhat like this, where this side is P side and this side is N side. And we have discussed two types of biasing. Okay, what are the two types of biasing? Forward Forward and and reverse. reverse. Yes, forward and reverse bias. Okay, what we do in forward bias? What are the connections? P must be connected to positive and N must be connected to negative. So this is plus and this is minus, and this biasing is known as forward biasing. What happens in reverse bias? P to the negative and N to the positive. Okay, so this is minus and this is plus. This one is known as a reverse bias. And if you remember the forward and the reverse bias characteristics, okay, what we plot along y-axis, we plot current along y-axis. So this is positive current and this is negative current. And we plotted voltage along x direction. This is positive potential difference and this is negative potential difference. Okay, so when the diode is operating in a forward bias, okay, we get this kind of variation. So you all can see that current starts flowing after a certain voltage. Do you remember what this voltage is known as? Knee voltage. Huh? This is known as knee voltage. Very good. Okay, or it is also known as a turn on voltage. That means if the applied voltage is greater than knee voltage, then only we will get the current. That means the diode will be on after this condition. You are getting, so what is the minimum voltage required to turn on the diode? It is the knee voltage. Are you all clear? What is the exact meaning of knee voltage? So tell me, knee Yes. voltage is also known as? Turn on voltage. Very good. Okay, turn on voltage. किसे on करेगा ये? It will turn on the forward bias semiconductor diode. What happens in reverse bias? Okay, in the reverse bias, the current is almost zero. And beyond a certain voltage, okay, you can see the current will abruptly increase. This is an abrupt increase. What this voltage is known as, anyone know? Breakdown voltage. Very good. Okay, this voltage is known as a breakdown voltage. What happened exactly at this voltage? Okay, if you remember the inner arrangement of PN junction, this is P side and this is N side, and this is the junction. This is a barrier actually. ये wall की तरह काम कर रहा है. तो जब आप
वोल्टेज, ओके, ये रिवर्स वोल्टेज दिया मैंने, P to the minus N to the plus, and if this voltage is greater than the breakdown voltage ना, then what happens, the junction will collapse, मतलब ये बाउंड्री पूरा निकल जाएगा, और अगर बाउंड्री ही निकल गया तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कैन माइग्रेट वेरेवर दे वांट easily without any barrier, and hence the current is increasing abruptly. Are you all clear with this, everyone? Students, are you all clear with these many points? Yes, sir. Yeah, okay. Then we have discussed about transistors. Okay, I explained you about logic gates also, and then we had discussion regarding BJT, bipolar junction transistor. How many types of transistors we have discussed? Students, how many types of transistors we have discussed? Forgot? I gave you the example of a sandwich. Number one is PNP and number two is NPN. Okay, what happens in PNP transistor? N material is sandwiched between two P material. And what happens in PNP? P material is sandwiched between two N material. Now student, tell me, in P-type semiconductor, what are the majority charge carriers? Holes. In P-type semiconductor, holes are majority charge carrier, and in N-type semiconductor, electrons are the majority charge carriers. Are you all clear with this? So what is the difference between metals and semiconductor? Can anyone tell? What is the exact difference between metals and semiconductor? Metals current flows due to transfer of electrons. Mhm. Semiconductors, the current flows due to holes and electrons. Very good. That means metals. Okay, these questions will be asked in your practical examination, in the Viva section. So you must be able to answer them. Okay, in metals, there will be only one type of charge carrier, electrons. But in semiconductor, there are two types of charge carrier, holes as well as electrons. Are you all clear how to answer this question? In metals, you find only one types of charge carrier, that is electron. But in semiconductor, we have two types of charge carriers, that is holes as well as electrons. Are you all clear with this point, everyone? Yes, sir. Okay, chalo. Then if we recollect the symbol of transistor, there are three terminals. Do you remember what are the three terminals we had? Yes. Collector, emitter, base. Emitter, base, and Very good, very good. Emitter, base, and collector. Very nice. So this one is emitter, this one is base, and this one is collector. Okay. Do you remember we are supposed to place one circular cap over here? This indicates that there is a vacuum. Okay, there are two regions. Okay, there are two regions. Number one is a emitter base region, and what is number two? It is a base collector region. Okay, emitter base region should be which biased? forward. Very good. It should be forward bias, and base collector region should be reverse bias. Okay, so how you will differentiate in the symbol? You will draw one arrow. If the arrow is pointing towards the base, then it is PNP. And if the arrow is pointing towards emitter, then it is NPN transistor. Are you all clear with the difference in their symbol? I'm repeating. If the arrow, you will draw arrow between emitter and base. So if the arrow is pointing towards base, then it is PNP. And if the arrow is pointing towards emitter, then it is NPN transistor. Are you all clear with this point? Yeah. Then there will be three currents. What are the three currents? Emitter current, then you will have base current, and then you will have collector current. Student, do you remember the relation between these three? What is the relation between these three currents? IA equals to IB plus IC. Emitter current is base current plus collector current. Are you all clear? Emitter current is given by what? Base current plus emitter current. And there were two types of current gain we have discussed. We have discussed what is alpha and what is beta. These both are known as current gain. Alpha and beta, they are known as current gain. Gain हमेशा कैसे calculate करते हैं? Do you remember? Gain is always calculated as output over input. So in both the cases, output will be taken across collector only. फिर कैसे याद रखना है? बीटा है तो यहाँ पे IB लिखना, बीटा के साथ B, और अल्फा के साथ क्या लिखा जाएगा? IE. Okay, this is known as a common base configuration, and this is known as a common emitter configuration.
इसमें क्या होगा, बेस विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यू आर गेटिंग, और इसमें क्या होगा, बेस सॉरी एमीटर विल बी कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. आई होप दिस इज क्लियर students. Yes, sir. Yeah, no difficulty. So whatever we have discussed in lecture 1 and lecture 2, I hope all the points you have revised at home and there are no doubts. In case you have any difficulty, you can ask me, else we will move ahead. Students, no doubt from lecture 1 and lecture 2? Respond something. Yes or no? No, sir. Okay, chalo. We'll start with the new session then. Just tell me, student, how we make a PN junction diode. Okay, because what we are going to discuss now is a solar cell. Okay, solar cell discuss करेंगे, और solar cell का पहले हमें कंस्ट्रक्शन डिस्कस करना है. ठीक है, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम बेस लेंगे प्योर सिलिकॉन का. ये एक्सप्लेनेशन समझ लो, हर बुक में इसका एक्सप्लेनेशन अलग है और बुक से समझना ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है. ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेप 1? आई एम टेकिंग अ स्लाइस ऑफ प्योर सिलिकॉन. तो मुझे बताना बच्चों, यहाँ पे किसका नेटवर्क मिलेगा, कौन से बॉन्ड्स का नेटवर्क मिलेगा आपको? स्टूडेंट टेल मी, कौन से बॉन्ड्स का नेटवर्क होगा इफ दिस इज अ स्लाइस ऑफ प्योर सिलिकॉन? तो यहाँ पे कौन सा नेटवर्क होगा? ऑफ कोर्स सिलिकॉन का नेटवर्क होगा ना स्टूडेंट, यस और नो? Yes, sir. Okay, and if you remember, I explained you the structure. कि every silicon will create how many covalent bond? 4. Student, 4 covalent bond, क्योंकि valency 4 है. Okay, and this structure is there throughout this rectangle. याद रखना, ये हम दिखाते नहीं हैं और बहुत सारे लोगों को ये इमेजिन करना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि ये जो बेस है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना पिज्जा का, तो हम सपोज इफ आई ऑर्डर अ पनीर पिज्जा, ओके, तो आपका फोकस किस पे गया? पनीर पे गया. ओके, अगर हमने मशरूम पिज्जा ऑर्डर किया तो आपका फोकस किस पे जाता है? मशरूम पे जाता है. लेकिन मुझे बताना, मैक्सिमम क्वांटिटी किसकी होती है? मशरूम की होती है या ब्रेड की होती है? Bread. बोलो ना, ब्रेड की होती है. समझ में आया? जो बेस मटेरियल है. बात आ रही है समझ में? ओके, अगर हम पनीर पिज्जा भी ऑर्डर करते हैं तो पनीर की क्वांटिटी थोड़ी सी ही मिलेगी. मैक्सिमम क्वांटिटी हमें किसकी मिलती है? ब्रेड की मिलती है. ओके, लेकिन नाम हम पनीर का देते हैं. बिल्कुल वैसे ही है. हियर स्टूडेंट्स डोंट रिमेंबर कि जो बेस बना है वो किसका बना हुआ है? सिलिकॉन का. सो आपको जो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड्स मिलने वाले हैं वो किसके होंगे? सिलिकॉन के होंगे. नाउ इट इज क्लियर फॉर ऑल students? Is this point clear for all? Yes, sir. Respond something. Yes. Okay, then if you remember कि अगर मुझे p टाइप क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा? ओके, सो द मेजॉरिटी ऑफ बॉन्डिंग विल बी सिलिकॉन सिलिकॉन. अब यहाँ पे हम प्रोड्यूस करने वाले हैं p टाइप सेमीकंडक्टर. कैसे बनता है p टाइप सेमीकंडक्टर? डू यू रिमेंबर? सिलिकॉन में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम. सिलिकॉन में क्या ऐड करेंगे? बोलो बच्चों, एल्यूमिनियम. ओके, तो यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? यहाँ पे बनने वाले हैं होल्स. ओके, ये होल्स क्या इंडिकेट करते हैं? दैट दिस इज अ p टाइप सेमीकंडक्टर एंड होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. और n टाइप कैसे क्रिएट किया जाता है? n टाइप के लिए हम सिलिकॉन में किसे ऐड कर देते हैं? फॉस्फोरस. ओके, तो फॉस्फोरस विल हैव वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन. फॉस्फोरस विल हैव वन एडिशनल इलेक्ट्रॉन. बच्चों बात आ रही है समझ में? सो दिस इज n टाइप मटेरियल. इस प्रोसेस को समझ लेना. ओके, सो दिस इज p टाइप सैंपल एंड दिस इज n टाइप सैंपल. अब मुझे बताइए कि ये जो मिडल रीजन है उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट टेल मी व्हाट दिस मिडल रीजन इज नोन एज. Forgot? Depletion region. There are two names. So one is a barrier region, or it is also known as what? It is also known as a depletion region. Okay. Now tell me one thing. ये सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो है ये चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? दिस मटेरियल, दिस p मटेरियल, ये वाला सैंपल जो है, ये वाला पार्ट, इट इज अ चार्ज्ड वन और इट इज अ न्यूट्रल वन?
देखो सिलिकॉन को हटा के हमने एल्यूमिनियम लाया, जो सिलिकॉन निकल गया वो भी न्यूट्रल था, जो एल्यूमिनियम आया वो भी न्यूट्रल ही है। You are getting? So this region is neutral. Even this region is neutral. But if you remember कि as soon as the junction form, यहाँ पे बीच में junction form होता है, do you remember that junction form? तो यहाँ के phosphorus अपना इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देते हैं, तो एल्यूमिनियम will acquire a negative charge and the phosphorus will acquire a positive charge. Okay, so aluminium will gain negative charge and the phosphorus will gain positive charge. तो देखो यहाँ पे जो region है ना वो ionized region है. I'm talking about a barrier region. तो बैरियर रीजन में देखो आपको क्या मिलेगा, सिलिकॉन ओके प्लस आयोनाइज्ड एल्यूमिनियम, एंड इस तरफ क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा सिलिकॉन प्लस आयोनाइज्ड फॉस्फोरस। स्टूडेंट्स आर यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. यस पक्का? ओके नाउ आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो बैरियर रीजन है ना, बैरियर रीजन, उस बैरियर रीजन में कितने टाइप्स के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं? टेल मी, बैरियर रीजन में कितने टाइप्स के बॉन्डिंग्स अवेलेबल है? एनीवन? इन अ बैरियर रीजन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर अवेलेबल? एनीवन? नो वन? अरे सामने लिखा हुआ है, आंसर करो ना। बैरियर रीजन में अभी अभी बताया मैंने कि सिलिकॉन एंड आयोनाइज्ड एल्यूमिनियम है, दैट इज नंबर 1। ओके, नंबर 2 सिलिकॉन एंड आयोनाइज्ड फास्फोरस है। ओके और कोई बॉन्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों बैरियर रीजन में? सिलिकॉन। वेरी गुड, क्योंकि वो बेस में है ना, यू आर गेटिंग। तो बेस मटेरियल किसका बना है? सिलिकॉन, जो ब्रेड है हमारा। ओके एंड द ब्रेड इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, सो द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी सिलिकॉन। आर यू ऑल गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? अब मुझे बताना इन तीनों में किसके नंबर ज्यादा होंगे, कौन से बॉन्ड्स के नंबर ज्यादा होंगे? 1, 2 और 3? 3. वेरी गुड। मैंने ब्रेड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सिलिकॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और अगर सिलिकॉन की क्वांटिटी ज्यादा है ओके तो मैक्सिमम बॉन्ड्स किसके होंगे? सिलिकॉन एंड सिलिकॉन के। यहाँ तक समझ में आया सभी को? एवरीवन? Yes, sir. पक्का? और एनी डिफिकल्टी? No? Now we will discuss the actual construction of solar cell. Okay, solar cell का जो actual construction है ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। Okay, we will discuss this structure in 2D also as well as 3D also. Okay, just a minute. Okay. Now, first I will explain you this structure in 2D, so it will be quite easy for you all to understand in 3D also. ठीक है? जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे दो रीजन है, एक P रीजन है और दूसरा N रीजन है. So this is P region and this is N region. Everyone just look at this diagram and tell me their width are equal or unequal? Student, look at the diagram and tell me the width of P region and N region. Unequal. Which is more wider? P. Yes, which region is more wider? It is a P region. You are getting? Okay, so let me explain you in this 3-dimensional diagram. देखो नीचे हमने एक ब्रेड रखा है, ओके ये ब्रेड है P सैंपल का, ओके बीच में एक बैरियर रीजन बना है, ये जो रीजन है ना, दिस रीजन इज ए बैरियर रीजन, यू आर गेटिंग। और इसके ऊपर जो हमने ब्रेड रखा है वो है N मटेरियल का, ओके N मटेरियल की विड्थ होती है ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर और P रीजन की विड्थ है 300 माइक्रोमीटर। सो टेल मी स्टूडेंट कि दोनों की साइज में क्या रिलेशन है? द विड्थ ऑफ P इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ N, हाउ मेनी टाइम? Students tell me. 1000 times. Very good. Okay, that means the width of P
is almost 1000 times greater than the width of n. Are you all getting this? Okay, those who are planning for engineering next year, again you will be learning semiconductor in physics. That will be applied semiconductor, but okay, and for that you should know this. Also, those who are planning for electronics or electronics and telecommunication engineering, okay, your entire engineering will be based on semiconductor only. You are getting? Okay, so the width of p region is 300 micrometer and the width of n is 0.3 micrometer. अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, 2D में समझाता हूँ. पी साइड के आउटर जो रीजन है ना, उसको एक मेटल प्लेट से पूरा ढक देंगे, कवर कर देंगे. ओके, तो पी के नीचे हमने एक मेटल की प्लेट को प्लेस किया है. यू आर गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग? The entire P region is covered by what? Student, tell me, it is covered by what? It is covered by a metal plate. ठीक है, लेकिन जो N रीजन के ऊपर का सरफेस है ना, यहाँ पे हम मेटल के फिंगर्स लगाएंगे, मतलब मेटल की वायर्स लगाएंगे. ओके, तो इस तरफ हमने पूरा कवरिंग नहीं किया है, हमने इसको पार्शियल कवर किया है. ओके, तो ये क्या है? दीज आर मेटल फिंगर्स. These are metal fingers. Okay, can anyone answer कि यहाँ पे मैंने मेटल प्लेट लगाया है, वहां पे मैंने मेटल फिंगर्स लगाए हैं, ऐसा क्यों किया है? Any idea? ऐसे क्यों किया होगा? Answer my question. Semiconductor is a ohmic device या non ohmic device? non-ohmic. लेकिन मेटल कैसा डिवाइस है? ओमिक डिवाइस. तो अगर आप मार्केट से सेमीकंडक्टर खरीदोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने मार्केट से एलईडी खरीदा, कभी खरीदा है एलईडी, सिंगल एलईडी? ओके, तो उस एलईडी में ना ऐसे दो लीड्स होते हैं, एक की लेंथ ज्यादा होती है, दूसरे की लेंथ कम होती है. ओके, तो कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इसको काट के इक्वल लेंथ बना देते हैं. डोंट डू दैट. ये बिगर लेंथ इंडिकेट दैट इट इज पी एंड शॉर्टर लेंथ इंडिकेट दैट इट इज एन. Are you all clear? Okay, but these leads are made up of what? They are made up of metal. तो हम एक्चुअल सर्किट में किसे कनेक्ट करते हैं? इस लीड को कनेक्ट करते हैं. और ये जो मेटल के लीड्स है ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द ओहमिक कॉन्टैक्ट. याद रखना, ये हमेशा याद रखना. ओके, कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, किसी भी नॉन ओहमिक डिवाइस के अक्रॉस अगर हम मेटल लगा देते हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टू जनरेट द ओहमिक कॉन्टैक्ट. आर यू क्लियर? Yes. स्टूडेंट, आर यू क्लियर? ओके, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि P को तो हमने पूरा कवर कर दिया, लेकिन N के यहाँ पे ऐसे मेटल के फिंगर्स क्यों लगाए हैं? ओके, सो दीज आर मेटल फिंगर्स एंड दीज मेटल फिंगर्स कवर्स 4% एरिया. इसका मतलब बाकी का 96% एरिया कैसा है? अभी भी ओपन है ना बच्चों. मेटल फिंगर्स ने कितना एरिया कवर किया? 4%. तो रिमेनिंग 96% ये अभी भी ओपन है. कोई बता सकता है ये ओपन क्यों रखा गया है? हाउ सोलर सेल वर्क? Light falls on it. किस पे काम करता है? सनलाइट पे काम करता है ना. ओके, तो हमें क्या करना है? हमें सनलाइट मतलब फोटॉन्स को गैदर्ड करना है, और इन गैदर्ड फोटॉन्स को हमें कहां तक लाना है? इन गैदर्ड फोटॉन्स को हमें इस डिप्लीशन लेयर के अंदर लाना है. और यही रीजन है कि हमने एन रीजन जो है ना, एन रीजन, उसकी विड्थ इतनी छोटी रखी है, 0.3 माइक्रोमीटर. नाउ यू ऑल आर क्लियर व्हाई द विड्थ इज सो स्मॉल. ये याद रहे, टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन समझने वाला नहीं है. यू आर गेटिंग? ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले देखो अरेंजमेंट क्या किया, 4% एरिया कवर किया, बचा हुआ 96% ओपन रखा ताकि मैक्सिमम फोटॉन्स अंदर आ सके. ये फोटॉन्स है, सनलाइट है, और ये फोटॉन्स को आपको कहां तक लेके जाना है? डिप्लीशन लेयर तक. ये हमारा कौन सा जंक्शन है? स्टूडेंट बोलो, ये हमारा कौन सा रीजन है? दिस वन इज अ डिप्लीशन रीजन. तो बाहर से आने वाले जो फोटॉन्स है वो कहां तक जाना जरूरी है? बाहर से आने वाले फोटॉन्स डिप्लीशन रीजन तक जाना जरूरी है. बच्चों बात आ रही है समझ में? और ये तभी जा सकते हैं जब n की विड्थ छोटी हो, क्योंकि अगर n की विड्थ बड़ी होती है तो ये फोटॉन्स यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू रीच द डिप्लीशन रीजन. ओके, सो नाउ वंस द फोटॉन रीच द डिप्लीशन रीजन, अब देखिए क्या होगा. अब बच्चों मुझे बताना, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर कितने तरह के बॉन्डिंग्स अवेलेबल है?
बच्चों बताइए, डिप्लीशन रीजन के अंदर कितने तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं? 3. स्टूडेंट आंसर करोगे तो 3. 3 है। हाँ, तो मजा आएगा पढ़ाने में। ओके, लेकिन किसके नंबर ज्यादा हैं? 3. The third one. Silicon, Silicon. हाँ, ओके, तो देखो ये बाहर से आने वाले फोटॉन्स है। फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी ना। फोटॉन्स क्या है? दीज आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड वंस द फोटॉन्स एंटर, उनका काम क्या है? बॉन्ड को ब्रेक करना। तो ये फोटोन फर्स्ट बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है, सेकंड को भी ब्रेक कर सकता है, और थर्ड को भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज किसके ज्यादा है? Silicon, sir. या Third. किसके? थर्ड वन के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा है, More in number. मैक्सिमम। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो जब ये फोटॉन्स एंटर करेंगे तो कौन से बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है? सिलिकॉन सिलिकॉन। अब जरा सोचिए कि ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। सपोज ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। ओके, तो अब ये सिलिकॉन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो ओपन अप हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड ओपन अप हो गया, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट। स्टूडेंट यस और नो? एंड व्हाट विल बी जनरेटिंग एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन? इट इज अ होल। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? देखो, एक होल बना और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना। ओके, सो दिस इज नोन एज होल इलेक्ट्रॉन formation. What this process is known as, everyone? This is known as whole electron pair formation. Okay, whole electron pair formation. Now you all are clear what is happening? Student respond something. Are you all clear what is happening? Yes, sir. पक्का? ओके, तो जैसे जैसे फोटॉन्स आते जाएंगे, ओके, वैसे वैसे ये बॉन्ड्स टूटते जाएंगे। जैसे जैसे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूटेगा, ओके, उतने ही इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर जनरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर कहाँ पे जनरेट हुआ? ये इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इस रीजन में जनरेट होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इस रीजन में जनरेट होगा। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए बच्चों, ये सोलर सेल है ना, सोलर सेल है क्या? इट इज अ टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड ओनली। ठीक है, मुझे बताना, इसको सनलाइट की जरूरत होती है या खुद ये लाइट जनरेट करता है? Needs sunlight. It needs sunlight ना, it needs external light. So I will show two incoming arrows. Are you clear? Okay, हम यहाँ पे दो incoming arrows दिखाएंगे। ये arrows क्या इंडिकेट करते हैं? That the light is coming inside, मतलब इस डायोड को एक्सटर्नल लाइट की जरूरत है। आया समझ में? एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सोलर सेल। ये किसका सिंबल है बच्चों? बोलो बोलो, ये किसका सिंबल है? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सोलर। आर यू क्लियर? पक्का? सीईटी एग्जाम की अगर बात करो ना, तो उसमें इजी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ सोलर सेल। बोर्ड एग्जाम की बात करो तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ सोलर सेल। ओके, तो उसमें आपको ये पूरा कंस्ट्रक्शन, फिर उसका सिंबल, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। ओके, नाउ आंसर माय सिंपल क्वेश्चन कि अगर ये डायोड है तो इसे मुझे फॉरवर्ड बायस करना होगा या रिवर्स बायस करना होगा? बच्चों बताइए, अगर ये डायोड है तो इसे फॉरवर्ड बायस करना होगा या रिवर्स बायस? Forward. फॉरवर्ड बायस। ओके, एनीवन एल्स? व्हाई फॉरवर्ड बायस? ओके, मुझे बताना, अगर फॉरवर्ड बायस करना हो तो मुझे किसकी जरूरत होगी? हाउ टू डू इट फॉरवर्ड बायस? इस डायोड को फॉरवर्ड बायस करना हो तो कैसे करेंगे? Positive to positive and So you require P external side battery, na? positive. You require external Yeah. battery for that purpose. Okay. Student, remember solar cell है ना ये? What are we discussing? बच्चों, what are we discussing? We are discussing a solar cell ना? ये खुद एक सेल है, ये खुद एक बैटरी है। तो ये ना तो फॉरवर्ड बायस होगा ना तो रिवर्स बायस होगा। तो याद रखना ये कैसे होगा? ये अनबायस्ड होगा। एमसीक्यू आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, यू आर गेटिंग, और सीईटी एग्जाम में, कि सोलर सेल इज अ फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस या अनबायस। तो आंसर क्या होगा? अनबायस, क्योंकि ये खुद एक सेल है, उसके लिए हमें और एक सेल की जरूरत नहीं है। आया समझ में?
सो रिमेंबर, इसके अक्रॉस हमें एक्सटर्नल बैटरी की जरूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड यू नो ना कि आपके कैलकुलेटर में आपने देखा है जो राइट टॉप में एक ब्राउन कलर की मिरर होती है, हैव यू सीन? बच्चों Yes, sir. कैलकुलेटर देखे आप लोगों ने? कैलकुलेटर में ना राइट टॉप में ओके ऐसी ब्राउन कलर की मिरर होती है। एनीवन नो व्हाट दैट मिरर इज? Solar. हाँ, दिस इज नोन एज अ सोलर एरे। ओके, सोलर एरे कहते हैं इसे। एरे का मतलब क्या है? देखो ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये सेल नंबर 3 है। एक सेल से जो वोल्टेज बनेगा वो होगा V1, सेकंड से बनेगा V2, V3। अब मुझे बताना ये तीनों सेल मैंने कैसे ज्वाइन किए हैं? सीरीज में ज्वाइन किए हैं। और सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज एडअप हो जाता है। एक सेल का जो वोल्टेज है ना वो काफी कम होता है, और यही रीजन है कि हमने सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ दिया ताकि एक बड़ा वोल्टेज मिले। सो यू गेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज व्हेन यू जॉइन द सेल्स इन अ सीरीज मैनर। नाउ यू ऑल आर क्लियर ओ ब्राउन मिरर का एक्चुअल फंक्शनिंग क्या है? Yes, sir. स्टूडेंट्स पक्का? ओके आपके बिल्डिंग्स में भी शायद से अगर सोलर पैनल ऊपर बिठाए होंगे, कुछ बिल्डिंग्स में वो प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि सनलाइट की एनर्जी को स्टोर कर सके। तो बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े। ओके और उसमें ये सोलर एरेज ऐसे लगाए जाते हैं। ओके सो रिमेंबर ऑल द कनेक्शंस आर मेड सीरीज, ताकि क्या हो? वोल्टेजेस ऐड होके एक लार्ज वोल्टेज प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इस सोलर सेल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सपोज वी कैन ऑपरेट द कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर जो है ना, इट इज अ एक्सटर्नल डिवाइस। कैलकुलेटर इज एक्सटर्नल डिवाइस, और इस एक्सटर्नल डिवाइस का जो रेजिस्टेंस होगा उसे कहा जाता है लोड रेजिस्टेंस RL। उसे क्या कहते हैं बच्चों? लोड रेजिस्टेंस RL। तो लोड हमेशा क्या होता है? इट इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो कोई भी गैजेट या डिवाइस हम एक्सटर्नली यूज करेंगे उसके रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल Yes, sir. स्टूडेंट्स? पक्का? ओके अब देखते हैं एक्चुअल होगा क्या प्रोसेस। देखो यहाँ से फोटोन आया, कहाँ से आता है? इस तरफ से। फिर इस विड्थ को क्रॉस करके ये फोटोन इस रीजन में आ जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल के पेयर बनाता है। अब बच्चों मुझे बताइए, ये पी रीजन में कौन प्रेजेंट होता है? इस पी रीजन में कौन प्रेजेंट होता है? मेजॉरिटी किसका है? होल्स का है ना। Holes. ओके ये होल्स मतलब क्या है? ये भूखे एल्यूमिनियम है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में 4 बॉन्डिंग्स का ऑप्शन है, लेकिन एल्यूमिनियम के खुद के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब इस एल्यूमिनियम को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये एल्यूमिनियम्स क्या करेंगे? यहाँ पे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेंगे, और फिर रिले रेस जैसा पासिंग का गेम खेलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट तक पहुंच जाएगा, एंड देन दैट इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। बात आ रही है समझ में? और ये इलेक्ट्रॉन्स अब धीरे 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 कहाँ से जाएंगे? मान लो आपके कैलकुलेटर से पास होंगे। नाउ टेल मी स्टूडेंट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन मतलब चार्ज इज इन मोशन, so you will have dq by dt. What is dq by dt? Students, what is dq by dt? करंट। Current. तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने वाला है? करंट, एंड दैट करंट विल प्रोड्यूस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कैलकुलेटर से या फिर लोड रेजिस्टर से करंट फ्लो होना चालू करेगा, एंड दैट कैलकुलेटर स्टार्ट्स ऑपरेटिंग। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते घूमते घूमते, हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। ये घूमते 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 ऐसे जाएगा, और फिर इसे अपनी जगह में जाके इस होल को फिलअप कर देगा। मतलब स्ट्रक्चर ओरिजिनली जैसे था ना, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ सोलर सेल? स्टूडेंट्स, are you all clear with Yes, the sir. exact working of solar cell? Just take a minute and revise each and every step. In case you have any difficulty, I will show you the previous slide. Just a minute. First you recollect what we have discussed in this slide, then I will show you the new slide. In case you have any difficulty, you can ask me there.
Okay, I will move on to the next slide. No, yeah, just revise everything. The construction, the working, the symbol, the biasing. Sir, Bola. sir, does this solar cell melt or some kind of burst or something? Can you repeat the question? This cell can it malfunction in case like it will break or something? No. What happens now? In a actual case, I will just tell you. If you see the actual solar panel, na, okay, in village side also the street lamps and all, they are charged with the help of solar panel. And below this solar panel, if this is a solar panel, na, it is connected to a capacitor bank, like your power bank. What happens in case of power bank? In case of power bank, there are capacitors which are filled. Na? In case of power bank, there are capacitors which are filled. So as long as the sun is present, okay, this solar cell can generate the voltage. This solar cell can generate the voltage, and that voltage gets stored inside the capacitor bank. Are you all clear? So we Yes, will sir. make the arrangement that a certain threshold value of voltage is only get generated. जैसे आपके मोबाइल को, आपको आदत क्या है कि रात में, सपोज नाइट में, आई विल कीप माई सेल फोन फॉर अ चार्जिंग, so that when I wake up I can see 100% charging and I can utilize for the whole day. You are getting, but your mobile require maximum of 2 hours to get 100% charge, but you are charging it for 8 hours. Okay, so there is a breakdown circuit which is inbuilt. Okay, and what is the function of that breakdown circuit? Okay, once the battery is 100% charged, it will automatically disconnect. मतलब internally अब उसका charging process. Are you all clear with this? Same arrangement is made over here in order to avoid the melting or any damage to the solar panel. Okay, sir. Thank you. Okay. Any more difficulty? Good question. Any more difficulty in this?